जब एक पिक्चर फेल होती है तो एक अटेम्प्ट फेल हुई। अगर आप खुद पे लेने लग गए आई एम अ फेलियर और आई एम अ सक्सेस, तो आप या तो सक्सेस में या तो फेलियर में अटक जाओगे। इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हो, कंपनी तुम्हारा डेब्यू हो रहा है एज एन एक्शन हीरो, अजय देवगन के साथ तुम आ रहे हो, राम गोपाल वर्मा लेजेंडरी फिल्म मेकर तुम्हें लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या ये छोटी सी पिक्चर, कौन है ये साथिया? साथिया में चाहिए बहुत सिंपल सा कैरेक्टर, बहुत सिंपल सा, शायद वो प्ले एज एन एक्टर प्ले कर पाए, पर उसकी स्टारडम और ऑरा बहुत बड़ी है। Hello everyone, my name is Onam Gupta and you're watching India.com Z Media. So today I have with me, well मैं उनका इंट्रोडक्शन एक वर्ड में दूंगी, साथिया। ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे गा रही हूँ सर, बता रही हूँ ऑन कैमरा, मतलब आपको देख के यही वर्ड निकलता है। बहुत अच्छे से। So please welcome the very talented and charming Vivek Oberoi. Thank you so much, Onam. Okay, so sir, मेरा first question आपसे start होता है. It has been 2 decades for you in this industry, like as an actor. जी. So now, if I have to ask you, where does Vivek Oberoi as an actor sees himself? I think a big position में आ गया हूँ where I feel empowered, where as an actor I don't have to do a film because it's my job. I have to do a film because it's my passion. I'm able to choose what I want to do, the people I want to work with or not work. वो एक flexibility आ गई है, and that's all thanks to whatever God has been kind in giving me success as a businessman. I've come into a position where now you have the luxury of picking and choosing. So, as you age, does your perception about roles also change? Sometimes ऐसा होता है हमें कुछ roles करने होते हैं but वो मिलते नहीं हैं. Then how do you deal with that? It depends, na? Are you aging or are you growing? Yeah. It's a very important question to ask yourself. Yeah. सिर्फ उम्र बढ़ रही है या ग्रोथ भी हो रही है? थिंकिंग की ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, ग्रोथ स्पिरिचुअली, वो ग्रोथ हो रही है तो देन यू स्टार्ट टू चेस डिफरेंट थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट। अलग चीज़ों के मायने अलग हो जाते हैं लाइफ में। तो आई फील कि आई एम वेरी लकी दैट वे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन बीइंग एन एक्टर। आई हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम रोल ऑफ एनी कलर ऑन द स्पेक्ट्रम। मैं हमेशा कहता था कि एक कंप्लीट एक्टर बनने के लिए यू हैव टू प्ले द होल रेनबो, सब कलर्स आपको प्ले कर, सतरंगी बनना पड़ता है। अगर आप एक ही कलर प्ले करते जाएंगे लोग भी बोर हो जाएंगे उसके बाद, तो आप भी बोर हो जाओगे। कितना एक ही चीज एक बार करोगे? कई लोग हैं, बड़े कलाकार हैं जो तंग आ चुके हैं कि यार मैं इसी बॉक्स में अटक गया हूँ। तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स कांस्टेंट ग्रोथ एंड री-इनोवेशन। Okay. Now I have to talk about your debut in company. It was fantastic debut, I must say. Before venturing into films, your father, did Suresh sir give you any life mantra that still stayed with you? He said something to me when I was about 11 years old. And at the age of 11, I said, Dad, I think I'm sure I want to be an actor. Because I was winning a lot of awards in the inter-school and school level plays. I started playing the main leads. I started winning awards, and people started really feeling that okay, I started feeling I have talent. And then I entered the Trinity College of London a speech and drama contest, and I placed in the top percentage in the world. It's an international contest. Then I said कि मुझे बनना है, actor बनना है. I'm sure. Confidence है कि I think I know what I'm doing. 11 साल का था, बच्चा था। डैड ने मुझे एक चीज कही, he said it's good to desire but always deserve what you desire. Yeah. तो ये बात मुझे समझ में आई कि do I deserve what I desire? मुझे अगर एक्टर बनना है, अच्छा एक्टर बनना है, तो वो डिजर्व करने के लिए मुझे क्या करना है, क्या मेहनत करनी है। And then I started that journey. I started going to theatre, started learning things, पिक्चरें देखना, अच्छे एक्टरों से मिलना, उनसे बातें करना, प्लेस देखना, फिर स्कूल प्लेस से कॉलेज प्लेस, फिर कॉलेज प्लेस से नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स, फिर नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन से प्रोफेशनल थिएटर, वो सारी चीज़ें ग्रेजुएट करता गया। मुझे अपनी वॉइस को ट्रेन करना था, तो मैं बैठ के जहाँ पे डबिंग आर्टिस्ट होते थे वहाँ जाके बैठ जाता था, स्ट्रगलर की तरह। I used to join Leela Ghosh ji. She was one of the best dubbing artists, voicing artists. Now her daughter Mona Ghosh does really well. उनके साथ जाके ट्रेनिंग करता था घंटों घंटे। तो वो जो एक तपस्या थी, उसने मुझे डिजर्व करवाया what I desire. What I feel that you are one of the most versatile actors in our industry. Thank you. Because you have actually worked in
every platform, whether it's television, theater, films, OTT, every. So where do you feel most connected with your audience? I think every platform has its own different kind of connection. जब आप थिएटर करते हैं तो लाइव आप लोगों के एक्सप्रेशंस देखते हैं. इट्स अ टू वे. यू फीड ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ पीपल कि वो इमोशनल कैसे फील करते हैं. जब आप फिल्म करते हैं तो फॉर मी जब कैमरा ऑन हो जाता है तो मुझे सामने कुछ नहीं दिखता है. आई डोंट सी एनीथिंग एल्स. एवरीथिंग एल्स सीजेस टू एग्जिस्ट. मैं उस कैरेक्टर की दुनिया में चला जाता हूँ और वो कैरेक्टर बन जाता हूँ. कट होने के कुछ सेकंड बाद आई कम बैक. तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. You can't choose one. Yeah, you can't choose one because each one is satisfying in its own way. Film is able to give you isolation. आप inward जा सकते हो. Theater में आप combination है inward and outward depending on the play. बहुत intense, बहुत serious play, you have to go inward. बहुत engaging play है, comedy है, मस्ती कर रहे हो आप कुछ stage पे. Then you have to feed off the audience life, right? You have to play and calibrate that life. तो उसका एक अलग मजा है. सबका अलग अलग अपना मजा. Every actor has this ups and downs in their career. Like जब films नहीं चलती हैं, there are articles written about you. There are several things where people write about, as an actor. जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है, how do you deal with that situation? Look, again, my father taught me this. He said कि बेटा, when you become successful, when you get a success, enjoy it, move on. When you get a failure, reflect, क्यों fail हुआ, move on. Don't stay in success, don't stay in failure. Because life is about moving forward. उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि जब एक पिक्चर सक्सीड होती है तो एक अटेम्प्ट आपकी सक्सेसफुल हुई. जब एक पिक्चर फेल होती है तो एक अटेम्प्ट फेल हुई. अगर आप खुद पे लेने लग गए, आई एम अ फेलियर और आई एम अ सक्सेस, तो आप या तो सक्सेस में या तो फेलियर में अटक जाओगे. मैं कहा चलो यार ये अच्छी चल गई, ग्रेट, नाउ व्हाट नेक्स्ट. सिंपल, दैट्स लाइफ, मूव ऑन. एंड आपने बहुत अच्छी बात बोली थी जो मुझे एक्चुअली टच्ड मी अ लॉट, दैट जब किसी ने आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछा था हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रगल्स, तो आपने कहा अपनी माँ के यू क्राइड ऑन योर मदर्स लैप, एंड उन्होंने बोला जब जब फिल्म नहीं चलती है तब क्या होता है, दैट अवार्ड कम्स, जब अवार्ड्स मिलते हैं तब क्या होता है. अभी ये स्ट्रगल, या व्हाई मी. सो उस टाइम कैसा चलता है दिमाग में वो. आई थिंक विमेन आर द कॉन्शियस कीपर्स ऑफ सोसाइटी. आपकी माँ आपके मन और आत्मा दोनों को शेप करती है अपने आशीर्वाद से, अपनी बातों से, अपने कर्मों से, अपनी लोरियों से, रात को सुलाते समय की कहानियों से. Mothers inspire their children, boys and girls, and that's why I feel that they're so important. And my mother continues to inspire me, and she has always been my idol, and she will continue to be. Sir, साथिया की बात करें, I think most people will agree with this, including myself, that the people are very connected to this film because it's so pure, the romance and everything. बट मैंने कई इंटरव्यू में भी देखा था कि आपको बोला गया था कि प्लीज साथिया को डोंट डू साथिया. तो वाज इट ट्रू? हाँ, मुझे मेंटर्स, एडवाइजर्स सबने कहा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये पिक्चर, ये मत करो. इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हो, कंपनी तुम्हारा डेब्यू हो रहा है एज एन एक्शन हीरो, अजय देवगन के साथ तुम आ रहे हो, राम गोपाल वर्मा द लेजेंडरी फिल्म मेकर तुम्हें लॉन्च कर रहे हैं, तुम क्या ये छोटी सी पिक्चर, कौन है ये साथिया. उस टाइम पे रानी, हु आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस इन इंडिया, वाज नॉट डूइंग वेल. आई थिंक एक साल से शी मस्ट हैव बीन नॉट शूटिंग, ज्यादा कोई पिक्चर चल ही नहीं थी. शाहद अली वाज अ न्यू कमर. तो सब कह रहे थे कि क्या ये छोटी सी फिल्म क्यों कर रहे हो. बट आई जस्ट फेल्ट इट. आई फेल्ट कि इस पिक्चर की सोल, एक स्पिरिट बहुत प्यारी है. आदि मुझसे कनेक्ट हो गया कहीं ना कहीं. मुझे लगा कि ये करना है. तो it paid off. Sometimes you have to take risks in life. And it's paid off so well. So, sir, अगर आज के टाइम में साथिया का रीमेक बने, तो what do you think, like new age Bollywood actor or actress who could be the best to play the part? Until now, I used to think it's Ranbir because he's one of my favorite actors. I think he's effortless. He's brilliant with romance. But I think now Ranbir as a star has become too big. His stardom has become too big. साथिया में चाहिए बहुत सिंपल सा कैरेक्टर, बहुत सिंपल सा. शायद वो प्ले एज एन एक्टर प्ले कर पाए, बट उसकी स्टारडम और ऑरा बहुत बड़ी है. तो अंटिल नाउ आई यूज्ड टू थिंक इट शुड हैव बीन रणबीर एंड आलिया.
That would have been a Oh, perfect combination for Satya. definitely. But now I don't know who. Okay, but रणबीर and आलिया for sure. For अभी sure. ठीक है. So सर बात करते हैं अब आपके बिजनेस के बारे में. So दुबई में लॉन्च हो रहा है बहुत बड़ा. आप प्लीज हमारे ना ऑडियंस के साथ शेयर करिए. तो हमारी कंपनी है B&W डेवलपमेंट्स. हम आपके साथ सारे विजुअल्स भी शेयर करेंगे. प्लीज शेयर इट विद योर ऑडियंस. बहुत मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि एज इंडियंस भारत का नाम रोशन करें. एक ग्लोबल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लग्जरी की डेवलपमेंट्स कर रहे हैं. एक्वाक हमारी पहली सोलो डेवलपमेंट है. इससे पहले हम जॉइंट वेंचर्स कर चुके हैं एज B&W डेवलपमेंट्स. Aquahawk is ultra luxury project coming up in front of the world's biggest casino. विन का casino आ रहा है मरजान आइलैंड में. वहाँ पे रिसोर्ट्स, फैमिली एरियाज, casino, luxury shopping, ये सारी चीजें I think it's the first casino. in the UAE, Yeah. in the Middle East, yeah. Wow. और उसके सामने ही हमारी बिल्डिंग है Aquahawk, जो हमारी कंपनी के लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट है. लगभग 2,300 करोड़ की सेल वैल्यू है उसकी. और मंडे को हमारा सॉफ्ट लॉन्च था 24 तारीख को. लॉन्च भी नहीं हुआ और सॉफ्ट लॉन्च के 5-6 दिन के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 400-500 करोड़ की सेल हो गई है उसमें. गॉड इज बीन वेरी काइंड. आई थिंक लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि B&W मीन्स क्वालिटी, B&W मीन्स परफेक्शन, B&W डिलीवर्स एवरीथिंग दैट यू कैन ड्रीम ऑफ. एवरीथिंग जो आपका एक सपना है, एक एस्पिरेशन है, एक गोल है लाइफ में कि यार ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी लिविंग होनी चाहिए. या एज एन इन्वेस्टर कि अगर मैं यहाँ खरीदूं तो लोग यहाँ रहने आएंगे, मुझे रेंट की कमाई होगी. एंड दिस इज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट. And this is not just for Indian investors, this is for global investors. So today our investor base has become from all over the world. लोग देशों से आ रहे हैं और बोल रहे हैं भाई B&W का बहुत नाम सुना है. We would like to buy a unit there. Wow. So God has been very kind. 450 people work with our team in B&W today. A lot of them are Indians, but we have many nationalities. I think we have more than 40 or 50 nationalities of people working with us. But everybody contributes, from CEO level down to the boy in our canteen. सब उसी लगन और कमिटमेंट के साथ में काम करते हैं. हमारे यहाँ ऑफिस आने का तो टाइम हो सकता है, ऑफिस से जाने का टाइम किसी को पता नहीं. बट दिस इज द रीजन बाय 4 साल के अंदर आज 14 प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं ऑल ओवर दुबई. आज 5 प्रोजेक्ट आप कसिनो के सामने कर रहे हैं. Aquahawk is the first, but उसके बाद 4 और प्रोजेक्ट आ रहे हैं. So vision is to create a global standard of luxury. अब जब आप विजुअल्स देखेंगे you'll understand what we mean. People think कि यार ये कहाँ बन रहा है, मायामी में बन रहा है कहीं, ये कहीं इबीजा में बन रहा है, स्पेन में बन रहा है, बार्सिलोना में बन रहा है. नहीं, ये रसल खैमा में बन रहा है कसिनो के सामने और इंडियंस इसे डेवलप कर रहे हैं. Wow, that's amazing. And That's why India flag and B&W. Wow. So मेरा यही क्वेश्चन था, why Dubai, not India? मतलब why? I think because UAE has become a global market. आज अगर आप compete करोगे, आप दिल्ली आओगे तो आप किससे compete करोगे? DLF से compete करोगे? How can you compete? There are only that many number of people who want to buy in Delhi because they're from Delhi or around, and they will have 20 options. बम्बई जाओगे तो उतने ही लोग हैं. UAE has that very unique place where जितनी पॉपुलेशन है उससे 5 गुना ज्यादा टूरिस्ट हैं. 5 गुना ज्यादा टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन. तो आपके लिए एज एन इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, whether you want to live there or not. अब आपका ये जो बिजनेसमैन का एक वो है ना ऑरा, वो भी और देखने में हमें बहुत मजा आएगा. एंड आई जस्ट वांट टू नो द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दैट we'll see you in? Oh, in films? Yeah. The only thing that I can talk about right now is Masti 4. Wow. Because it's been announced. I'm looking forward to all the Masti with our director Milab Zaveri, Induji of course, producer. Wave Band is co-producing it. They're a great team. And Aftab and Ritesh will be a riot as always. I love those boys and it'll be too much fun working with them. Of course. So we have to wrap up the interview because I think you are quite in rush, but event पे जाना है. हाँ, event पे जाना है, कोई बात नहीं. So I think all the best, sir, and thank you for joining with us. It was a lovely conversation, and thank you for watching.